تو آج کل دنیا کی سب سے بڑی خبر کون سی ہے کہ جی the conflict between Ukraine and Russia. تو ابھی اس کی وجوہات کیا ہے فار ایگزامپل، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے پھر جا کے یہ بنی ہے. میں آپ کو کچھ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں. یو کین رائٹ اٹ، یو کین نوٹ اٹ ڈاؤن. سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ یہ جو یوکرین ہے یہ رشیا کا حصہ بنا تھا ان 1793 1794. تو اس ٹائم کیا تھا، یہ رشیا کا حصہ بنا تھا. لیکن اس کے بعد کچھ تقریباً کئی صدیوں تک بہت ایک لمبے عرصے تک وہ رشیا کے ساتھ پاس رہا ہے. لیکن پھر جا کے جب 1991 میں جب راشیا جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو بہت سارے اسٹیٹ، بہت ساری کنٹریز وہ آزاد ہو گئی تھی. تو ان آزاد ہونے والی ریاستوں میں سے ایک یہ یوکرین کی ریاست بھی تھی. اور تقریباً 24 اگست 24 اگست 1991 کو یہ یوکرین جو ہے گاٹ انڈیپینڈنس فرام راشیا. یہ چیز ہو گئی. اچھا، ابھی اس کے بعد اس کے اگر ہم بانڈز کی بات کر لینا تو بانڈز جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ اس کی فار ایگزامپل بانڈز ہے. جس طرح ہم البانیہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل پولینڈ کی بات کر لیتے ہیں، ہنگری کی بات کر لیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. جس طرح ہم بیلاروس کی بات کر لیتے ہیں، تو رومانیہ کی بات کر لیتے ہیں، یا فار ایگزامپل بلغاریہ کی بات کر لیتے ہیں. لیکن اس کی جو سب سے لمبی سرحد ہے، جو سب سے اس کی لمبی باؤنڈری ہے، وہ رشیا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ تقریباً 2295 کلومیٹر وہ رشیا کے ساتھ اس کی باؤنڈری ہے. اور یہ باؤنڈری جو ہے وہ ابھی ونس اگین دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. کچھ حصہ جو ہے وہ زمینی حصہ ہے، اور کچھ جو ہے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، سمندری ہے. تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 1974 کلومیٹر یہ زمینی باؤنڈری ہے اس کی، اور جو باقی ہے تقریباً 300 پلس ہے، 321 یہ جو ہے سمندری یہ اس کا ہے وہ باؤنڈری ہے اس کی رشیا کے ساتھ. اچھا جی، ایک یہ بات ہو گئی ہے. اگر ہم پاپولیشن کی بات کر لیتے ہیں تو 44.5 ملین is the population of Ukraine. ایک یہ بات ہے. دوسری بات اگر ہم رشیا کی بات کرتے ہیں that is 144.6 ملین population of Russia. ٹھیک ہے، تو یہ دو تین باتیں تو یہاں پر ہو گئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم یوکرین کی اگر کیا کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں، دارالخلافہ کی بات کر لیتے ہیں تو کیوی جو ہے اٹ از دا کیپٹل آف یوکرین. اچھا، ایک یہ بات ہو گئی ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ یوکرین میں جو آفیشیل لینگویج ہے دیٹ از یوکرینین. ٹھیک ہے، آفیشیل لینگویج ان یوکرین دیٹ از یوکرینین. لیکن تقریباً 70.7% پیپل ان یوکرین اسپیک رشین لینگویج. ٹھیک ہے، جس طرح ہم بول چال وغیرہ کر لیتے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل کے فار ایگزامپل کیا ہے، وہ جو کرنٹ سیناریو جا رہا ہے ان دو ممالک کے درمیان، یہ جو فار ایگزامپل کانفلکٹ ہے، یہ جو ایک وال لائک اسٹیٹ ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس، وہ کس چیز کی وجہ سے؟ یہ بیسیکلی ایسا ہوا تھا کہ 2014 میں 2014 میں یوکرین میں کچھ مظاہرے شروع ہو گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ڈیمونسٹریشنز اور اس قسم کے کچھ حالات بن گئے تھے. وہ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ جو یوکرین کا اس ٹائم پریزیڈنٹ تھا تو اس کے خلاف کچھ مظاہرے شروع ہو گئے تھے. تو اس چیز کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر نکل آئے تھے. ایک یہ وجہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ولادیمیر پوٹن رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے تو اس نے بھی کچھ کیا تھا. اچھا، یہی جو میں ابھی فیکٹس بول رہا ہوں یہ بھی بیسیکلی دے آر بینگ نوٹڈ ڈاؤن ایز ویل. یہاں پر کوئی اس کو نوٹ بھی کر رہا ہے تو یہ میں آپ کو جا کے واٹس ایپ گروپ میں PDF میں شیئر بھی کر لوں گا so that you can understand it. اچھا، اس کے علاوہ دوسری اس کی جو ہے وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن rejected the agreement to join the European Union. کس چیز کی وجہ سے؟ تاکہ وہ
मिसाल के तौर पर जो लोग हैं क्या करें वो मास्को तक पहुंचे। तो इस चीज की वजह से फिर जाके बहुत सारे क्या कहते हैं वो मुजाहिरे बन गए थे। और इन्हीं मुजाहिरों के दौरान 2014 के दौरान फिर क्या हुआ है कि रशिया ने जो अपनी बाउंड्रीज है उस चीज को भी जाके फिर वो एक्सटेंड किया है। और जो यूक्रेन है उसका एक आइलैंड था, उसका नाम था क्राइमिया। ठीक है, तो क्राइमिया के ऊपर भी जाके रशिया ने कब्जा किया था। ठीक है, उस चीज को भी जाके, तो इस एक तो ये बात हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्ट अपने साथ नोट कर लें कि व्लादिमीर पुतिन रशिया का पहला प्रेसिडेंट था कि जिसने क्या किया है, जिसने रशिया की जो बाउंड्रीज है या रशिया की फॉर एग्जांपल जो टेरिटरी है उसमें इजाफा किया है या उस चीज को एक्सटेंड किया है। तो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। एक ये बात हुई है। अच्छा, अब उसके अलावा दूसरी बात ये है कि फिर रशिया ने उस टाइम क्या किया, कुछ वहां पर थे रेबल्स इन द ईस्टर्न यूक्रेन। उन लोगों को क्या किया है व्लादिमीर पुतिन ने यानी रशिया ने उस चीज को सपोर्ट करना शुरू किया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि यही जो फॉर एग्जांपल जो बागी थे ये लोग आगे बढ़ गए, ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ से आगे बढ़ गए। और फिर जब जैसे ही आगे बढ़ गए तो यूक्रेन की जो दो रियासतें थी उन पर जिसका एक नाम था डोनेट्स्क और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था जनाब लुहांस्क। तो इन दो स्टेट्स पर भी जाके उन बागियों ने कब्जा किया है। जैसे ही कब्जा किया है तो हालात और भी फॉर एग्जांपल बिगड़ गए। और उसके बाद फिर उस यानी कि 2014 से ये जंग जारी है, ये सिचुएशन जारी है और तकरीबन इसमें आज तक मैं समझता हूँ कि 14,000 से ज्यादा लोग इसमें तकरीबन वादी तक मारे जा चुके हैं, यानी कि दोनों साइड से कुछ 14,576 577 ऐसा कोई नंबर है। तो इतने लोग क्या कहते हैं वो फॉर एग्जांपल मारे गए। अच्छा, एक ये चीज हुई है। उसके बाद जो बागी की, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि उन लोगों ने क्या किया था, जैसे दो जो स्टेट्स हैं तो उन पर कब्जा किया था। तो व्लादिमीर पुतिन ने इस टाइम भी किया है दोबारा से। व्लादिमीर पुतिन जनाब या रशिया ने इन दो को एक जो सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर उसको तस्लीम किया। तो अब हालात उसके बाद और भी बढ़ गए हैं। अच्छा, एक ये चीज हुई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे बुनियादी वजह है वो कौन सी है? सबसे बुनियादी वजह बेसिकली ये है कि यूक्रेन जो है वो यूक्रेन चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन और जो नेटो है उसका क्या बने, हिस्सा बने। लेकिन रशिया को ये बात कबूल नहीं है, रशिया को ये बात मंजूर नहीं है। किस वजह से? रशिया जनाब समझता ये है कि अगर ये यूक्रेन है, यूक्रेन ये नेटो का या फिर ये फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का अगर हिस्सा बन जाता है तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी टेरिटरीज को ऐसे एक्सटेंड करेगा। और उस चीज की वजह से फिर जो रशिया की सलमियत है, जो रशिया की फॉर एग्जांपल अमन अमान की जो हालत बनी हुई है रशिया में, तो उस चीज को इंतहाई ज्यादा खतरा है। किस चीज की वजह से? इस वजह से कि अगर यूक्रेन जो है इफ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ नेटो। अच्छा, एक ये चीज हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है कि रशिया को इस चीज पर भी बहुत ज्यादा एतराज है कि यूक्रेन को अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है, या यूक्रेन में जो अमेरिका वो करता है, जो फौजी बशके हैं वो कर रहा है। तो उस चीज की वजह से भी क्या है, बहुत ज्यादा एतराज़ात आ रहे हैं। किसकी तरफ से? रशिया की तरफ से आ रहे हैं। रशिया चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट ना करे, वो उसको फॉर एग्जांपल आर्म्स ना दें या उसमें यूक्रेन के अंदर वो ना करें, जो जंगी या फौजी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो ना करें। तो इस चीज के ऊपर वो रशिया को बहुत ज्यादा एतराज है। तो यही वजह है। अच्छा, उसके अलावा जो आजकल की अभी तकरीबन कुछ 3-4 दिन पहले की बात मैं अगर आपको बताता चलूं कि उसमें रशिया ने अभी एक डिमांड है, रशिया का डिमांड ये है
जनाब हम सब कुछ तस्लीम कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो यूक्रेन है इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ नेट, ठीक है, तो वो नेट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो इस चीज की वजह से भी जाके, या जो फॉर एग्जांपल अदर यूरोपियन कंट्रीज है तो उनके साथ या इत्तेहाद है या कोई भी आप इस चीज को समझ लें कि वो नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है बात की? अच्छा, और अभी जो आजकल फॉर एग्जांपल अभी कुछ हफ्ते हो रहे हैं, तकरीबन 10-12 दिन हो रहे हैं, या मे बी ऐसे 15-16 डेज हो रहे हैं कि उसमें फिर रशिया ने किया कि तकरीबन 1,90,000 से ज्यादा फौज, ठीक है, वो रशिया ईस्टर्न यूक्रेन की जो बाउंड्री है वहां पर वो लेकर आया है, इस चीज की वजह से ताकि वो तस्लीम करे। बहरहाल तो अब ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो ऊपर से जो बाइडन है, जो बाइडन की भी कुछ बातें यहाँ पर भी मैं आप लोगों को ये चीज जाके बताता जाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर हम करंट अफेयर की क्लास में बहुत तफसील से बात कर लेंगे। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस चीज को वो मेंशन करते हैं कि क्या हम इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं? बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं या वीडियो में हमारे सामने अक्सर कही जाता आता है कि जी जो मुख्तलिफ कंट्रीज है या जो दुनिया, अभी मैंने खुद भी अभी बात की है कि दुनिया जो है वो अभी तकरीबन 2 हिस्सों में बांट गई है। तो कुछ अमेरिका के साइड वाले हैं, कुछ फॉर एग्जांपल रशिया के साइड वाले हैं, कुछ इस किस्म की बातें हैं। तो अभी थर्ड वर्ल्ड वार के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट कॉल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड थर्ड वर्ल्ड वार। व्हाई? इस वजह से कि अभी ये दो बातें सिर्फ यूक्रेन और रशिया के दरमियान है ना। हाँ, उस टाइम ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आजकल के कॉन्फ्लिक्ट है ना, उस वक्त ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं जब क्या करें, रशिया जो है वो नेटो के किसी मेंबर मुल्क पर हमला करे। अगर रशिया, if Russia attacks any of the members of NATO, then it can get the situation of World War the Third। लेकिन इस किस्म का कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल। तो इंशाल्लाह बाकी भी हम बात कर लेंगे, डिटेल से बात कर लेंगे। मेरे ख्याल में इतना काफी है, मैं भी थक गया हूँ बहुत सारा, और उसके बाद इंशाल्लाह we'll be talking। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है then you can pose that very question in the WhatsApp group। Okay, have a good life and best of luck। Allah Hafiz।